اچھا ایک اور بات پوچھنی تھی آپ سے کہ جیسے پہلے شروع میں نے عرض کیا کہ میری کوشش ہے ابھی کہ میں ان دوستوں سے ملوں جو شوبز سے دور ہو گئے ہیں، تو ابھی آپ کافی دور ہو گئے ہیں اور فری بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں؟ جو مختلف چینلز تو کافی ہیں، ہمارے سندھی بھی ہیں، اردو چینلز بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کام نہیں کر پا رہے؟ بہت پیاری بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو زخم ہے آپ نے پھر اس پہ جو ہے نمک چھڑکا ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی بھی اگر آرٹسٹ ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اس کا اندر کبھی اس کے جو اندر ایک آرٹ ہے وہ کبھی مرتا نہیں، چاہے بوڑھا ہو جائے کتنا بھی ہو جائے۔ تو اس نے چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے چھوڑا ہوا ہے، ابھی بھی جہاں سے کال آتی ہے میں ضرور جاتا ہوں، لیکن ابھی چینلوں کا آپ کو شاید علم ہے، بالکل ایسا برا حال ہو گیا ہے، اور پھر مینجمنٹ کا چینج ہونا، پھر جب مینجمنٹ کسی کی چینج ہوتی ہے، کیونکہ میں تو سروس میں رہا ہوں، جب مینجمنٹ چینج ہوتی ہے تو پھر کیسا اثر ہوتا ہے؟ سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو وہ میں نے دیکھی کہ وہاں پراپر آدمی نہیں آتا تھا کہ بھئی کون آرٹسٹ کیا ہے، کس میں کتنی کیلیبر ہے کتنا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آرٹسٹ کوئی بھی ہو بڑا حساس ہوتا ہے، اگر اس کو آپ ریسپیکٹ نہیں دیں گے اس کے اکارڈنگ ٹو ہز اسٹیٹس تو وہ پھر مر جاتا ہے۔ بعض تو بیچارے کمپرومائز کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ تو کچھ حالات ایسے ہو گئے چینلوں کے، تو میں جب دیکھتا تھا تو مجھے رونا آتا تھا۔ میں تو جب بہت پہلے جب یہ فلم انڈسٹری ختم ہوئی، آپ کو بتایا تھا کہ میں شوق میں انڈسٹری میں فلم میں بھی جاتا رہا، کسی حد تک اندر بھی چلا گیا، محمد علی صاحب سے ملاقات نہیں، اس کے عشق میں چلا گیا تھا۔ لیکن بات وہی ہے کہ وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ میں نے اس کو میسج بھیجا، آپ اندازہ لگے کتنا بڑا آدمی ہے، بہت بڑا۔ اچھا آرٹسٹ بھی بہت بڑا تھا اور انسان بھی بہت بڑا تھا، جو ہم بار بار یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کی انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ اس بندے کو، میرا ایک دفتر تھا وہاں ہیڈ آفس تھا لاہور میں، جی میں نے ایک افسر کو کہا کہ یار عید تھی، عید کے نیکسٹ ڈے میں نے اس کے بوکے بنایا، ایک کیک بڑا سا، میں کیا اس کو پہنچا، اس نے بیچارے نے ظاہر ہے کہ افسر کہے تو چلا گیا، اس کو دیا ہے، اور جو اس نے ریسپانس دیا ہے بندے کو، انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ جی آپ یقین کریں گے آج بھی وہ آفیسر زندہ ہے بیچارہ، اس نے ایک بوکے دیا اس کو ریٹرن میں، اور ایک لٹریچر دیا۔ اچھا وہ میں آپ کو بتاؤں کیا دیا، اور ایک کارڈ دیا اس نے، وزٹنگ کارڈ نہیں ہوتا، وزٹنگ کارڈ دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ سارے نمبر سب لکھے ہوں گے، نمبر ایڈریسز لکھا ہوا، اس نے باقاعدہ سائن کیا ہے، واہ، سید محمد علی بیچارہ لکھا ہے پیچھے، بیسٹ وشز کر کے، ہاتھ سے انہوں نے ڈسپیچ کر کے مجھے بھیجا۔ میں نے ادھر کھولا، وہ پھول ہی تھے، ایک لٹریچر تھا جو کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے تھا۔ واہ واہ واہ، پھر اس نے جو نمبر دیا میں نے کانٹیکٹ کیا اس سے بات کی، کافی دیر مجھ سے بات کرتا رہا، اور پھر جب میں نے بتایا کہ وہ اس نے سمجھ لیا ہے سندھی ہے، تو پھر بڑی خوشی سے بات کرتا رہا، کہتا عزیز صاحب میری خواہش ہے کہ میں حیدرآباد میں بچوں کے لیے تھیلیسیمیا کے لیے کوئی ادارہ کھولوں جس میں آپ جیسے لوگوں کی مجھے ضرورت پڑے گی۔ بڑی بات۔ میں نے کہا علی بھائی آج بھی
कल भी आपके साथ हूँ, जब दिल चाहे आप जो है मिल जाए। एक दफ़ा हमारा बिल्कुल विज़िट तैयार हो गया, वहाँ से हमने उसका टाइम लिया। इधर से मैंने अपने चेयरमैन को, मेरा एक चेयरमैन था स्टेट सीमेंट का, मैंने कहा साहब आपको चलना है। बड़ी तैयारी की हमने, क्योंकि हमारे नसीब में नहीं था। इधर फैक्ट्री मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी, अच्छा हम लोग जा नहीं सके जो है, काश में चला जाता। आज तक वो तकलीफ मेरे अंदर वो रहती है, जो कि मैंने क्या किया ये। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, वो जिक्र हो रहा था, वो जिक्र हो रहा था चैनलों का। हाँ, तो वो शौक़ तो अभी भी है, मैंने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन कहीं से कॉल आती है तो जाते हैं, वरना ये मेरी बहुत, आप समझे, बुरी आदत है कि मैं मांगता नहीं हूँ। सर मांगना चाहिए भी नहीं, इतना काम किया है तो मांगने की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ जो मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, जितने भी हमारे बड़े ममालिक हैं, जितना आर्टिस्ट सीनियर हो जाता है उसकी अहमियत उतनी बढ़ जाती है, होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि जितना सीनियर हो जाता है तो हम उसको ट्रीट करते हैं बूढ़ा हो गया, हाँ भाई ये किसी काम का नहीं है, अभी इसको छोड़ दो, ये घर बैठे, यार ये भुलक्कड़ है, इसको डायलॉग याद नहीं होते। भाई एक सीनियर आदमी है, आप ज़रूरी थोड़ी उसको आप ड्रामे दो, उसको किसी भी अपने इदारे में बिठा दो, उसको जज बना दो, उसके साथ आप कोई डायरेक्शन का काम ले लो, उससे गाइडलाइन ले लो, ताकि ये है कि वो भी बिज़ी रहे और आपका भी अच्छा काम हो जाए, क्योंकि तजर्बेकार आदमी का बड़ा अच्छा काम होता है। वो बंदा आपका गाइड है, आपका स्कूल है, आपका वो टीचर है, आप उससे बहुत सारा काम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये हमारे नौजवान ये समझते हैं कि हम कंप्लीट हैं, थोड़ी सी जवानी और ठीस ठास आ गई तो हो। अच्छा, इसी बात में मैं आ रहा था कि आपके दौर में, यानी हमारे दौर में, मैं भी काफ़ी सीनियर हूँ, आप मुझसे सीनियर हैं, तो पहले ज़माने में हम लोग जो काम करते थे वो करते थे इश्क के तौर पर, अपने काम से बड़ा इश्क होता था, लगाव होता था और सिंसियरिटी होती थी। तो क्या आजकल के जो हमारे नौजवान आ रहे हैं, जो आर्टिस्ट हैं, फीमेल या मेल, तो आप समझते हैं कि उतनी सिंसियरिटी है उनमें जितनी कि हमारे दौर में होती थी? आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता हूँ। ये आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम आए किस लिए, बस अब कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड में नहीं कर सकता। बिल्कुल। उनके अंदर जो एक दर्द होना चाहिए किरदार का दर्द नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि वही बात आपकी है ना, जब मैं वहाँ ऐसे माहौल के अंदर फिक्सअप होता हूँ तो ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं अनफिट हूँ। हाँ सही कह रहे हैं आप कि मैं कहाँ आ गया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो डायरेक्टर साहब भी मैंने देखा है कि ज़्यादातर फोकस भी उधर ही जा रहा है। हाँ। भाई मैं सीनियर हूँ, मेरा काम ख़त्म करो, हाँ, तो मैं जाऊँ जो है। तो पर ऐसे हालात जब आपके चैनल्स के शुरू हो गए ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ हम भी बैक फुटिंग पे। हाँ हाँ हाँ। कुछ उन्होंने भी कहा कि यार वैसे थोड़ा सा नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और मैंने शुरू से स्टार्ट जो लिया था वो शॉर्ट स्टोरीज से लिया था, फिर बीच में जो है वो दूसरे लोग जो कर रहे थे तो फिर मैंने भी वो करना शुरू कर दिया। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज है वो करेंगे, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि उसमें आप काम करें। नहीं, इंशाल्लाह आपके साथ काम करना है। आपके साथ काम करना है हमने। बात है कि मैंने आपके सारी वीडियोस देखी है, औरों को भी देखता हूँ मैं समझने के लिए। जी जी। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं कंप्लीट आर्टिस्ट हूँ। मैं तो जब भी किसी को ड्रामा देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हमसे। जितनी आपकी वीडियोस देखता हूँ वो आपने जो एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं,
कभी बूट पॉलिश वाले के भी एक मैसेज होता है लोगों के लिए, मैसेज होना आवाम चाहिए। के लिए, हाँ। और यही हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आर्टिस्टों का, हमारा ड्रामा भी ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, कि वो मैसेज हो जो आइंदा के लिए उनके लिए एक मसले राह पर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें टेरर न हो, जंगो जदल न हो, उस किस्म की आपके तो बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं। इंशाल्लाह Thank you, sir. Thank आपकी you. कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मुझे यकीन है जो है। इंशाल्लाह सर। वक्त बड़ा बेदर्द है सर, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, तो आपसे स्पेशली हम थैंक्स ही कहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत मेहरबानी, आप आए, बड़ी खुशी हुई। आज की शाम तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत बन जाएगी। आप देखते हैं कितने हाँ सर, माशाल्लाह सर। खूबसूरत परिंदे। हाँ सर, नेचुरल बहुत नेचुरलिटी है। मैं आपको अपने फ़ोटो दिखाऊंगा जी सर। जिसमें जिन जिन की आर्टिस्टों की बात की है वो माशाल्लाह सब उसमें एक किस्म की आर्ट गैलरी हाँ, हाँ, बनाई हुई छोटी सी आपने। कि मैं इसलिए बनाता हूँ कि ये मुझे ज़िंदा रखते हैं। बिल्कुल। तो आने वाला बंदा जो है तो यही देखता है कि अभी मेरी शूटिंग हुई इधर इसके अंदर, कि अभी पाकिस्तान नेवी का कोई ड्रामा था। अच्छा जी। इसमें बहुत बड़े आर्टिस्ट जावेद शेख और कमर सबा कमर वगैरह आए थे। तो जब मेरा फ़ोटो देखा उन्होंने कि ओ ये तो हम सही घर में आ गए। वो कहते हैं ना कि जी पट्टे भाई हैं, तो वो पट्टे भाई वाले घर में आ गए। मैं घर में नहीं था, वो बच्चा था मेरा, कमांडर पाकिस्तान में, तारिक अजीज़ नाम है इसका जी। तो उसको कहते हैं कमांडर साहब, तो ये आपके वालिद साहब भी आर्टिस्ट हैं, तो सबा कमर ये वो सारे मेरे फ़ोटो देखने लगे ना, ये किधर से आ गया। कहते नहीं, हम जाते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।